students, yesterday we have started the second chapter of the kinematics, and that is uniformly accelerated motion. And let us have a quick recap of yesterday's lecture. Yesterday we have understood about what is accelerated motion, types of accelerated motion, then what is acceleration. Acceleration can be positive, acceleration can be negative, and acceleration can be zero also. Then we have learned the types of acceleration: uniform acceleration, variable acceleration, average acceleration, and instantaneous acceleration. And based on that we have done one numerical which clears you all the concepts covered in yesterday's lecture. Today we will do the second topic of uniformly accelerated motion, and that is what is the formula for uniform accelerated motion. By this formula we will learn three relations. First is velocity time relation, second is position time relation, and third is velocity position time relation. So these three relations we will do with the help of formula for uniformly accelerated motion. So what is this formula for uniformly accelerated motion? Suppose students, एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन अलोंग ओ एक्स. तो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे जो ओरिजिन है वो हमारा O है. इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग हमने दो पोजीशंस ले ली हैं ऑब्जेक्ट की, पोजीशन A एंड पोजीशन B. जो पोजीशन A है वो है एट टाइम इंटरवल T1 के ऊपर, और जो पोजीशन B है वो है एट टाइम इंटरवल T2 के ऊपर. और O से, ओरिजिन से जो पोजीशन A है वहां तक की डिस्प्लेसमेंट है x1, और पोजीशन B तक की जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज x2. तो ये जो x1 का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ट्रेवल्ड विद वेलोसिटी v1, और x2 जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ट्रेवल्ड विद वेलोसिटी v2. तो ये है. अब इससे हम निकालेंगे कि हमारा फर्स्ट वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होगा, पोजीशन टाइम रिलेशन क्या होगा, और वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन क्या होगा. तो फर्स्ट इज आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न velocity time relation, second we will find out the formula for position time relation, and third is position velocity time relation. Position time relation. So based on this diagram we will understand these three relations. Let's first come to the velocity time relation. Students, velocity time relation will give you acceleration. If on one axis I take the velocity, and on the second axis if I take the time, then velocity time relation will give you acceleration. So first is velocity time relation, and velocity time relation will give you acceleration. So acceleration का formula हमने कल किया था. Acceleration is given by change in velocity. Acceleration का जो formula होगा that would be your, ये लिखा था ना, acceleration is equal to v minus u over t. तो इसको क्या लिख सकते हैं, final velocity minus initial velocity को we can write change in velocity. तो acceleration is change in velocity per unit time. And as I have told you, this much of displacement was travelled with velocity v2, and this much of x1 displacement was travelled with velocity v1. So what is change in velocity? Change in velocity would be v2 minus v1 over time interval t2 minus t1, and this is given as a. From here you can cross multiply. From here we will get v2 minus v1 is equal to a into t2 minus t1. अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम v2 का वेलोसिटी निकाल सकते हैं. v2 वेलोसिटी v1 को उस तरफ लेके जाइए, v1 प्लस a इंटू t2 माइनस t1. ये आ गया आपके पास एक रिलेशन. अब समझिए हमें करना क्या है. सपोज जो आपने ओरिजिन इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग O पे लिया है, इस ओरिजिन को अगर आप शिफ्ट कर देते हो A के ऊपर, तो अब A को अगर ओरिजिन बना लेते हैं तो यहाँ पे जो टाइम इनिशियली आपका T1 था वो T1 के ऊपर ओरिजिन आ गया, तो ये T1 0 हो गया.
और अब जब आपने इस ओरिजिन को a पे शिफ्ट कर दिया है, उस केस में t1 अगर 0 हो गया है तो t2 क्या हो जाएगा, t। तो अब हम ये लिखेंगे, लेट अस शिफ्ट द ओरिजिन फ्रॉम o to a. In that case, your t1 would be replaced by 0, t2 would be replaced by t, and we will also change the velocity v2 and v1. Let us suppose v2 को हम मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी and v1 जो है उसको हम मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी. So by replacing all these values we would get v2 को we would write v, v1 को we would write u plus a into t2 is t and t1 is 0, क्योंकि t1 पे हम क्या ले आए हैं, ओरिजिन ले आए हैं, तो दिस इज 0. तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, v is equal to u plus at, and you know this is the first relation, velocity time relation. So we have find out one relation, velocity time relation, and velocity time relation comes out to be v is equal to u plus at. हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, बाकी सबको रफ कर देते हैं. Now we move on to the second relation. ये रिलेशन है, ये लिख लेते हैं, ये हमें काम आएगा नेक्स्ट इक्वेशन में. Next is, you know, second relation is position time relation. And you know students, if on x axis you are taking time and on y axis, अगर आप x axis के along अगर टाइम ले लेते हो, y axis के along अगर पोजीशन ले लेते हो, तो ऐसा ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ will give you velocity. So पोजीशन टाइम ग्राफ से हम क्या निकालेंगे, velocity, and velocity होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन. अब स्टूडेंट्स इस फिगर से आप डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हो, ये आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था, ये आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट था. x1 डिस्प्लेसमेंट है o से a तक और o से b तक आपका डिस्प्लेसमेंट है x2. तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी, आप डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. तो इसको आपने याद है हमने फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1, x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, यू विल गेट दिस मच. एंड टाइम टेकन इज t2 माइनस t1. और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी स्टूडेंट्स, उसको हम लेंगे v एवरेज. दैट मीन्स एवरेज जो वेलोसिटी होगी, दैट वुड बी योर टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम. सो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एवरेज x2 माइनस x1 को लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 विल गिव यू v एवरेज इंटू t2 माइनस t1, यही लिख सकते हैं. अब v एवरेज का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, v एवरेज इज गिवन एज v1 प्लस v2 ओवर 2. दैट मीन्स जो टाइम t1 की आपके पास वेलोसिटी थी वो v1 थी, और t2 इंटरवल के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी थी वो v2 थी. अगर इन दोनों का हम सम ले लें और 2 से अगर इसको डिवाइड कर दें, देन वी विल गेट v एवरेज. तो v एवरेज की वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे, एंड वी वुड गेट x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v एवरेज. v एवरेज इज v1 प्लस v2 बाय 2 इंटू t2 माइनस t1. I hope this is clear to you. Now let us move forward. Students, see here v2. v2 की वैल्यू कैन आई रिप्लेस v2 by v1 plus a into t2 minus t1. तो v2 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, and you will get x2 minus x1 is equal to v1 plus v2 को किससे रिप्लेस करेंगे, v1 plus a into t2 minus t1. तो v1 plus a इंटू t2 माइनस t1, और ये पूरा ही है 2 और बाहर मल्टीप्लाई में है t2 माइनस t1. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ देखो, v1 प्लस v1 2v1, और 2v1 को 2 से डिवाइड करोगे तो v1. तो ये आपके पास आ जाएगा 2v1 ओवर 2, मल्टीप्लाई में क्या है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, t2 माइनस t1. I hope this is clear. प्लस इतने टर्म के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो वी वुड गेट
1/2a T2 minus T1, T2 minus T1, T2 minus T1 का होल स्क्वायर, T2 minus T1 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस x1 को उधर शिफ्ट कर देंगे। देन यू विल गेट x2, x1 को उधर लेके जाएंगे तो x1 प्लस में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट वुड बिकम x1 प्लस v1 इंटू T2 माइनस T1 प्लस 1/2a T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। नाउ अगेन वी विल डू सम चेंजेस, एंड व्हाट आर द चेंजेस? अगेन वही, अगर O को हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं A के ऊपर, इन दैट केस जो आपका x1 है उसको हम रिप्लेस करेंगे x नोट से, आपका जो x2 है उसको हम रिप्लेस करेंगे x से, आपका जो v2 है उसको हम रिप्लेस करेंगे v से, v1 जो रिप्लेस करेंगे उसको u से, t2 जो होगा वो हो जाएगा आपका t, और जो t1 होगा क्योंकि हमने ओरिजिन को a पे शिफ्ट कर दिया है तो t1 की वैल्यू ऑफ ओरिजिन, दैट मीन्स जहां पे टाइम कितना है 0, तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। सो सिंपली वी वुड गेट x2 को अगर हम रिप्लेस करते हैं x से तो ये आ जाएगा x, इसको भी अगर हम शिफ्ट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा x नोट इंटू v1, v1 को वी कुड राइट u, t2 को वी कैन राइट t, माइनस t1 इज 0 प्लस हाफ a, t2 इज t, t1 is 0 or again whole square. This can be written as displacement. X minus x naught can be written as displacement travelled by the object from A to B. So this is displacement S. ये बन गया ut plus half at square. This is students second relation, position time relation. So as I have told you, the name of the topic was formula for uniform accelerated motion. तो जब भी आपके पास motion is uniform accelerated motion, in that case velocity time relation होगा v is equal to u plus at. Position time relation आ गया हमारे पास क्या, s is equal to ut plus half at square. Now move on to the third relation and that is position time relation. अब देखो students, position time relation नहीं, position velocity relation, sorry. Position time relation तो हम कर चुके हैं ना, this is position velocity relation. अब देखो स्टूडेंट्स, हमने ऐसा कोई भी ग्राफ प्लॉट नहीं किया जिसके एक एक्सिस पे हमने पोजीशन लिया हो और एक एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ली हो। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे हमने वेलोसिटी के लिए लिख लिया x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1, और एक्सेलरेशन के लिए लिख दिया था हमने क्या, v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए नहीं है। सो दिस रिलेशन वी वुड फाइंड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट टू रिलेशंस। देखो कैसे। फर्स्ट रिलेशन क्या था, फर्स्ट रिलेशन था, हमने जब फर्स्ट इक्वेशन की रिलेशन के लिए जब स्टार्टिंग की थी तो हमने लिखा था a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। फ्रॉम द फर्स्ट रिलेशन कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t2 माइनस t1? From here, I would find out the value of T2 minus T1 is equal to V2 minus V1 over A. ये एक रिलेशन है और यू कैन से T2 minus T1 की वैल्यू है जो मुझे इस इक्वेशन में चाहिए होगी, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। T2 minus T1 is equal to V2 minus V1 over A. Now, यू नो सेकेंड इक्वेशन की जो हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने लिखा था एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1, ये लिखा था। और यहां से हमने क्या किया था, x2 माइनस x1 को लिखा था, x2 माइनस x1 को लिखा था v एवरेज इंटू t2 माइनस t1, यही किया था स्टूडेंट्स। और v एवरेज की वैल्यू लिखी थी v1 प्लस v2 बाई 2, सेम रिप्लेस कर दो,
V average V2 minus V1 सॉरी V2 प्लस V1 डिवाइडेड बाय 2। और अब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, T2 माइनस T1 की, जिसकी वैल्यू अभी हमने फर्स्ट रिलेशन से निकाली, कितनी, V2 माइनस V1 बाई ए, V2 माइनस V1 बाई ए, यही था। ओके, अब जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था कि क्या करेंगे, x2 को रिप्लेस कर देंगे x से, x1 को रिप्लेस कर देंगे x नोट से, और ये बन गया 1/2a, और ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, इस v2 को भी रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, v2 को भी रिप्लेस कर देंगे v से, और v1 को रिप्लेस कर देंगे u से। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, चाहे डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलो सेम ही होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। सो इट वुड बिकम s इज इक्वल टू हाफ a v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2a को इधर शिफ्ट कर दो एंड इट वुड बिकम 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो दिस इज आवर थर्ड रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, एंड दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। So this is the student formula for uniformly accelerated motion. For uniformly accelerated motion, we derive the three relations: velocity time relation, position time relation, and position velocity relation. This is the case of uniformly accelerated motion. Suppose students, एक और formula मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी और उस पे based हम एक numerical करेंगे, and the numerical is here is a numerical. Suppose a body है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, if it is moving with non uniform acceleration, अभी तो हम किसकी बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, बट सपोज इफ अ बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सपोज t1 टाइम के लिए जो बॉडी जो एक्सेलरेट कर रही थी विद एक्सेलरेशन a1, और t2 टाइम के लिए जो बॉडी का जो मोशन था या एक्सेलरेशन थी दैट वाज a2। तो इस केस में अगर हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी हो तो इन दैट केस फॉर्मूला इज a1 इंटू t1 प्लस a2 इंटू t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला we will do a numerical, and numerical is a particle is moving with a uniform acceleration. Uniform acceleration पे मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट ये सिर्फ कितने टाइम के लिए है, 2 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई है, कितने टाइम के लिए, 3 सेकेंड्स के लिए। तो आप देख रहे हो एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, तो उसके लिए व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल फॉर दिस मोशन वी कैन से। तो एवरेज एक्सेलरेशन होगी, अभी मैंने बताया द फॉर्मूला फॉर A average would be A1 यहाँ पे कितना है 4 इंटू कितने टाइम के लिए है 2 सेकेंड्स के लिए, देन A2 is 5 इंटू कितने टाइम के लिए है 3 सेकेंड्स, एंड डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, T1 is 2 प्लस T2 is 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5, एंड इट विल कम्स आउट टू बी 23/5, यही होगा 4, एंड दिस इज 6, और क्या था एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस जर्नी के लिए जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, जो मोशन में जो एवरेज एक्सेलरेशन है दैट इज 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी विल डू द वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन and position time graph for uniformly accelerated motion. You may see here, I have told you we will do some velocity time graph for accelerated motion. Velocity time graph, this is, that means on one axis we will take the velocity and on the second axis we will take the time. So this is the first graph, second, third, fourth, and you can say I have drawn some graph.
So first graph is, this is first graph, velocity time graph for accelerated motion. Here on one axis, x-axis, I have taken time, and on y-axis I have taken velocity. And you can see here the velocity time graph is a line AB, straight line parallel to the time axis. Here you can see that the velocity of the object is constant, and constant velocity will give you zero acceleration. How you know that? The formula for acceleration is v minus u over t. आप यहाँ पे देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो इनिशियल में ये थी, टाइम इंक्रीज करता जा रहा है बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट. दैट मींस जो इनिशियल में वेलोसिटी थी वही आपकी फाइनल में वेलोसिटी है. तो ये जो आपका न्यूमरेटर में आपको वैल्यू मिलेगी v माइनस यू, वो क्या होगा? जीरो, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी जीरो एक्सेलरेशन. एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. सेकेंड इज, यहाँ पे देख सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने प्लॉट किया है और उसके लिए भी एक स्ट्रेट लाइन है. यहाँ पे जो आपकी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और जो ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? जीरो है. एंड acceleration is constant positive acceleration. Object is moving with constant positive acceleration with initial velocity zero. आप यहाँ पे देख रहे हो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है. दैट मीन्स u यहाँ पे कितना था? जीरो. नेक्स्ट इज, यहाँ पे एक चीज तो आप देख सकते हो, जब ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया एट दैट टाइम इनिशियल वेलोसिटी वाज नॉट जीरो. ऑब्जेक्ट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी. तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो नहीं है. उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो एक स्ट्रेट लाइन है. दैट मीन्स अगेन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम पॉजिटिव इनिशियल एक्सेलरेशन, जो सॉरी वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट ने जब अपना मोशन स्टार्ट किया तो उसने जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी जीरो नहीं थी. ऑब्जेक्ट हैज सम पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है दैट विल गिव यू कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन. अब देखो यहाँ पे जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके लिए आपके पास एक कर्व शेप में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिला है, और अगेन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? जीरो. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है दैट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद increasing acceleration, and object has started its velocity, its motion with initial velocity zero. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने जब स्टार्ट किया तो इट हैज सम पॉजिटिव वेलोसिटी. इनिशियल में जो वेलोसिटी थी वो पॉजिटिव वेलोसिटी थी OE के बराबर, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, क्योंकि आपको ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ही मिल रहा है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है. सो कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, एंड द ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड इट्स मोशन विद सम पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी. अब यहाँ पे देखो इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट ने जब स्टार्ट किया अपना मोशन तो इट हैज सम इनिशियल नेगेटिव वेलोसिटी, और जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस पे. तो यहाँ पे एक चीज तो हमें पक्का पता है, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी. और जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी, ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड इट्स मोशन विद सम नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी. अब देखो यहाँ पे जो ये है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है, लेकिन कैसी होगी? नेगेटिव होगी, डिक्रीजिंग होगी. तो नेगेटिव यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन है यहाँ पे, एंड ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड इट्स मोशन विद सम positive initial velocity and moving with uniform negative acceleration. So these are the velocity time graph for an accelerated motion. Now we will understand velocity time graph we have covered. Now we will cover position time graph for accelerated motion. Position time graph for accelerated motion. Here you can see that there are three graphs. On one axis we have taken time, and on y axis we have taken position. So position time graph,
यहाँ पे जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो ए बी एक कर्व मिल रहा है आपको, यहाँ पे जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो एक सी डी कर्व मिल रहा है आपको, और इस ग्राफ में जो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन ई एफ। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये जो फर्स्ट आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, एंड योर पोजीशन टाइम ग्राफ इज इन द शेप ऑफ ए कर्व ए बी। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पॉजिटिव जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, और कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो जो ग्राफ है वो आपको कुछ कर्व के शेप में मिल रहा है बट इसके ऑपोजिट। थर्ड, यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन टाइम ग्राफ है और वो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है आपको। इन दैट केस आपका यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन, और जीरो एक्सेलरेशन आपको पता है कब हो सकता है, व्हेन योर इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी आर सेम, दैट मींस व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन दैट केस जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, जीरो एक्सेलरेशन। और जीरो एक्सेलरेशन के केस में आपका ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन एंड पोजीशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ई एफ। So this is the position time graph for accelerated motion. Now we will study the next topic, and that is velocity time graph of a uniformly accelerated motion. As you know, velocity time graph and position time graph we have done. Next is velocity time graph for a uniformly accelerated motion. In this we will understand the importance of velocity uniformly accelerated motion, or you can say we will understand the importance of velocity time graph under uniformly accelerated motion. So first of all graph plot कर लेते हैं. Suppose एक object है that is moving with uniform acceleration along a straight line, और ये हमने टाइम एक्सिस ले लिया, ये वेलोसिटी ले ली, सो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया. ऑब्जेक्ट का मोशन है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. लेट यू उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ अगर वो मूव कर रहा है तो दिस इज द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच इज अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज u. अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं. सपोज ये दो पॉइंट्स है, पॉइंट C एंड पॉइंट D. अब पॉइंट C एंड D, पॉइंट C के अलोंग अगर हम टाइम एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एट दिस इज द टाइम इंटरवल t1 एंड along this point the time interval is t2. C पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी वो होगी v1, और D पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी वो होगी v2. अब ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ अंडर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर देती हूं तो अब आपको पता है फ्रॉम दिस velocity time graph under uniformly accelerated motion we can derive three things, and the importance of this graph is can be understood with the help of three important quantities. First is with the help of velocity time graph we can find out the velocity at a particular instant of time. Importance होगा first with the help of velocity time graph we can find out the velocity at a particular instant of time. You can see here at the instant of time t1 the velocity is v1, at the time instant t2 the velocity is v2. So with the help of velocity time graph we can find out the velocity at a particular instant of time. What is the importance of
this velocity time graph under uniformly accelerated motion. Second is क्या find out कर सकते हैं हम इससे, आपको पता है acceleration is given as v minus u over t. That means with the help of velocity time graph under uniformly accelerated motion we can find out the acceleration. Acceleration का फॉर्मूला आपको पता है a is equal to v minus u. तो अगर हम यहाँ पे इस टर्म में लिखते हैं v2 is फाइनल वेलोसिटी, v1 is ये वेलोसिटी, तो v2 माइनस v1 अगर हम लिखेंगे v2 माइनस v1 ओवर टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, और ये हो जाएगा क्या, v2 माइनस v1 को वी कैन राइट de, तो ये हो जाएगा हमारे पास de, और t2 माइनस t1 is ce, and this is equal to the slope of straight line AB. That means acceleration is defined as the slope of the straight line AB. The acceleration can be given as the slope of line straight line AB. जो ये straight line AB है, CD है, will give the acceleration of an object under uniformly accelerated motion. That means ये जो velocity time graph है, इससे first जो आप find out कर सकते हो, you can find out the velocity at a particular instant of time. Second आप क्या find out कर सकते हो, acceleration find out कर सकते हो, और जो third आप find out कर सकते हो वो find out कर सकते हो distance traveled by an object in a given interval of time. और आपको पता है जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू द टोटल एवरेज स्पीड. Average speed is total distance into total time, and from here distance is given as v average into total time. और v average को आप क्या लिख सकते हो, v average को आप लिख सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो v एवरेज को आप लिख सकते हो v1 प्लस v2 ओवर 2. तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू v एवरेज v1 प्लस v2 ओवर 2 इंटू टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल कितना है, t2 माइनस t1, तो ये हो गया आपके पास t2 माइनस t1. अब देखो स्टूडेंट्स, v1 प्लस v2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, s इज इक्वल टू हाफ इंटू v1. v1 कितना है, दिस मच, अगर ये ओरिजिन है तो दिस मच. दैट मीन्स अगर मैं ये जो डिस्टेंस है वो इतने डिस्टेंस के इक्वल होगा, तो अगर मैं इसको c1 ले लूं, इसको मैं e1 ले लूं, या फिर इसको मैं d1 ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा c1. v1 को आप लिख सकते हो c1 प्लस v2 को आप क्या लिख सकते हो d1 इंटू t2 माइनस t1 को क्या लिख सकते हो आप, t2 माइनस t1 को आप लिख सकते हो c1 d1. और ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. कौन सा ट्रेपीजियम, c1 c d d1 c1 half into sum of parallel sides. This is one parallel side, this is second parallel side of the trapezium, and this or this you can say is the perpendicular distance between the two parallel sides. तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. कौन सा, c d d1 c1 c, c d d1 c1 c. So distance traveled under the velocity time graph of a uniformly accelerated motion is equal to the area under the velocity time graph with the time axis in a given interval of time. तो जो एरिया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, वो होगा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है
वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द विद द टाइम एक्सिस, जो दोनों के बीच में जो एरिया होगा दैट विल बी योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड. So this is the importance of velocity time graph. Under uniformly accelerated motion, we can find out the velocity at a particular instant of time. We can find out the acceleration, and third, we can find out the distance traveled in a given interval of time. So distance जो आपका होगा वो होगा area under the velocity time graph with the time axis in a given interval of time. Now, with the help of velocity time graph for uniformly accelerated motion, we will find out the equation of motion. और कैसे find out करेंगे equation of motion? Next is derivation of equations of motion for of uniformly accelerated motion for velocity time graph from velocity time graph. अगेन क्या करेंगे हम यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे जो आपने 9th क्लास में की थी. उसके लिए क्या करेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर. और उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट मीन्स एक एक्सिस पे हम टाइम लेंगे, दूसरे एक्सिस पे जब हम वेलोसिटी लेंगे तो जो ग्राफ आएगा, तो उस केस में जब ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, यू मान लेंगे उसको, और उस टाइम पे जो ग्राफ आपका होगा उस ग्राफ से हम क्या निकालेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालेंगे. और वो कैसे निकालेंगे वो देखो. पहले तो सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट करते हैं. अब आपको अच्छे से पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करना है. वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी लेंगे, एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेंगे. तो देखो ये हो गई आपकी वेलोसिटी, दिस इज योर टाइम एक्सिस. एक्स एक्सिस के अलावा आपने टाइम ले लिया. ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u है, और उसके बाद ये उसका कुछ जो स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके लिए आपका ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन. इसके ऊपर अगर हम क्या ले लेते हो, मान लो इसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर दो, ये हो जाएगी आपकी v एंड this is your time t. This is A, this is B, this is C, D, E and ये हो गया O. ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये इनिशियल वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की, ये स्ट्रेट लाइन था वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका. इस पॉइंट को आपने जब वेलोसिटी के ऊपर ज्वाइन किया वेलोसिटी एक्सिस पे, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे आपका टाइम इंटरवल है, ये आपका ओरिजिन है और ये आपका टाइम है. इस पॉइंट को नाम हम दे देते हैं E. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे जो कि हमारी है v इक्वल टू यू प्लस at. ये इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ अंडर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो आपको पता है v इक्वल टू यू प्लस at. हमें पता है ये v है, ये u है, और आपके पास एक फॉर्मूला है, हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस a इक्वल टू v माइनस यू ओवर t हमें पता है. अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे v को क्या लिख सकते हैं, v को हम लिख सकते हैं क्या, CE. v हमारा क्या है, OB है. v को हम क्या लिख सकते हैं, OB. u को हम क्या लिख सकते हैं, u is OA and t is OE
टी होगा वो आपका OE होगा। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, वी नो दैट एक्सेलरेशन जो होगा दिस माइनस दिस क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u। v इज OB, u इज OA ओवर t। t क्या है आपके पास, t इज यहां तक का डिस्टेंस, दैट मीन्स OE, और इसको आप लिख सकते हो OB, या फिर ये लिख लो OB कैन बी रिटन एज CE माइनस OA। OA इज इक्वल टू द DE ओवर OE, और इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास V, ये हो गया आपके पास U, और ये हो गया आपके पास T। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AT इज इक्वल टू V माइनस U, और U को आप इधर शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा V इज इक्वल टू U प्लस AT। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V इक्वल टू U प्लस AT विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। अब देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही है। अब अभी हमने देखा था कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो होगा अंडर द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद द टाइम एक्सिस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ से एरिया सॉरी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा S इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एंड दिस इज इक्वल टू द एरिया अंडर ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम, OACEO, OACEO। दैट मीन्स जो ये वाला ट्रेपीजियम है उसके अंडर जो ये एरिया है विद द टाइम एक्सिस वही होगा किसके इक्वल, आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल। और हमें यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो ट्रेपीजियम हमारा फॉर्म हुआ है इट इज मेड अप ऑफ टू एरियाज, वन इज ट्रायंगल एंड सेकंड इज रेक्टेंगल। तो इस एरिया को हम दो एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADEO। तो दिस एरिया कैन बी रिटन एज S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सी रेक्टेंगल, OADE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ACD। अब देखो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है OA, ब्रेथ क्या है OE। तो इसको हम लिख सकते हैं OA इंटू OE, ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल का ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया AD आपका बेस, और ये CD होगी आपकी हाइट। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस, बेस इज AD इंटू हाइट, हाइट इज CD, ये होगी आपकी हाइट। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको रिप्लेस कर सकते हैं बाय द फिक्स्ड वैल्यूज। जैसे S इज इक्वल टू OA के लिए वी कैन राइट U, OE के लिए वी कैन राइट T प्लस हाफ AD। AD is what? AD is again T and CD. CD is what is CD? CD को हम क्या लिख सकते हैं, इस CD को हम लिख सकते हैं क्या, देखो हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज V माइनस U ओवर T, यही होता है। अब ये आपके पास क्या है, V है, और ये आपके पास क्या है, U है। तो इस CD का मतलब क्या है, V माइनस U को हम क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा ये जो इस V को हम क्या लिख सकते हैं, V को हम लिख सकते हैं CE माइनस U को आप क्या लिख सकते हो, DE ओवर T, यही होता था। अब यहाँ से CE में से अगर DE माइनस करोगे तो क्या बचेगा, CD। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, CD, और CD की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, CD इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे हमारे पास CD कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है, तो इन प्लेस ऑफ CD आई कैन राइट 80। तो ये हो गया 80। अब देखो S इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ a और t हो जाएगा स्क्वायर, तो हाफ at स्क्वायर। तो ये आपने विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ यू हैव डिराइव्ड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस half at square. Now let's move on to the third equation of motion, and that is equal to the v square minus u square is equal to 2as. v square minus u square is equal to 2as. अब यहाँ से भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू द अगेन एरिया अंडर दिस ट्रेपेजियम, एरिया अंडर ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम है, OACEO, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हम लिख सकते हैं हाफ इनटू पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है हमारे पास, AO प्लस एक साइड ये होगी, दूसरी साइड कौन सी होगी, CE, ओके, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम को हम क्या लिख सकते हैं, OE, ओके, ठीक है, लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, S इज इक्वल टू हाफ, कैन आई रिप्लेस OA बाई DE, तो ये आपके पास हो जाएगा CE प्लस OA को हमने रिप्लेस कर दिया DE से एंड मल्टीप्लाइड बाय OE। अब हमें इस OE को रिप्लेस करना है। OE को हम क्या लिख सकते हैं, OE को हम लिख सकते हैं, OE क्या है आपके पास, टाइम है। और इस टाइम की वैल्यू आप कहां से फाइंड आउट कर सकते हो, इस टाइम की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं A इज इक्वल टू V माइनस यू ओवर T। अगर मैं यहाँ से T फाइंड आउट कर लूं तो T की वैल्यू हो जाएगी V माइनस यू ओवर A, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें T ही चाहिए, और T का मतलब क्या है, OE, और हमें OE की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, V माइनस यू ओवर A। तो V क्या है स्टूडेंट्स, V है हमारे पास CE, तो इसको मैं लिख सकती हूँ CE माइनस U क्या है हमारे पास, U हमारे पास OA भी है और DE भी है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस DE ओवर A। देखो मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास CE प्लस DE है, और मैं इस इक्वेशन से इसको रिप्लेस करना चाहती हूँ, किससे, CE माइनस DE से। तो मैंने रिप्लेस कर दिया CE माइनस DE से, तो OA की जगह हम रिप्लेस कर देंगे CE माइनस DE ओवर A। अब ये क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू हाफ, A को भी आगे ले लो, और ये हो गया CE का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड व्हाट इज CE, CE is V, तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू हाफ A V स्क्वायर, और DE क्या हो जाएगा, DE ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस U के इक्वल है, तो U स्क्वायर। 2A को इधर ले लो, ये बन जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। So, with the help of velocity time graph under uniformly accelerated motion, we have derived the three equations of motion. Now we are left with two small concepts, or you can say sometimes they may be asked in 1 mark question, what is reaction time and what is hang time. So reaction time, पता चल रहा है नाम से ही क्या है reaction time. फर्स्ट इज रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम क्या होता है, जब भी टाइम टेकन बाय ए पर्सन टू विजुअलाइज अ सिचुएशन, थिंक एंड एक्ट। किसी भी चीज को आपने देखा, उसके बारे में सोचा एंड एक्ट किया, उस जितना मतलब आपने किसी भी सिचुएशन को आप देख रहे हो और एक्ट करने के बीच में जितना टाइम है, उस टाइम को हम क्या कहेंगे, रिएक्शन टाइम। सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते टाइम आपने देखा कि सामने एक बच्चा आ गया है, छोटा बच्चा आ गया है सड़क के ऊपर, तो आपने देखा उस सिचुएशन को, और देखने के बाद कितने टाइम बाद आपने ब्रेक, जो आपका सिचुएशन को विजुअलाइज करना और उस सिचुएशन के लिए जो रिएक्ट करना था आपका, कि यू हैव अप्लाइड द ब्रेक, दैट इज योर रिएक्शन।
तो जब सिचुएशन को फेस करने के बाद और आपने जो रिएक्शन किया उस टाइम के उस ड्यूरेशन को कहते हैं रिएक्शन टाइम। मतलब एक्ट करने के लिए आपने जितना टाइम लिया दैट इज नोन एज रिएक्शन टाइम। ये रिएक्शन टाइम बेसिकली डिपेंड करेगा कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, ठीक है, उस टाइम पे। सेकंड, इस सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कितनी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। तो फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। सेकंड इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन। इन द सेम वे आपके पास सेकंड है एक हैंग टाइम। व्हाट इज हैंग टाइम? हैंग टाइम सपोज क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी आप जंप करते हो ऊपर की तरफ, वेन एवर यू जंप अपवर्ड साइड अबाउट द ग्राउंड अगेंस्ट द ग्रेविटी, जब आप जंप करते हो तो आप कितनी देर के लिए हवा में रहते हो, दैट इज नोन एज हैंग टाइम। सपोज आपने क्या किया, ऊपर की तरफ जंप किया और जब आप जंप करके जब नीचे वापस जमीन पे आते हो तो कितने टाइम के लिए यू आर इन द एयर, दैट इज नोन एज हैंग टाइम। अब ये हैंग टाइम भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास जो इनिशियल में जब आपने जंप किया तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी ज्यादा थी, एक तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा कि ऑब्वियसली आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आपकी मसल्स के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हैंग टाइम इज द टाइम व्हेन एवर यू जंप्स इन द एयर फॉर द टाइम during which you remains in air, that is known as hang time. It also depends on two things. First, strength of your muscles. Second, जो आपकी जंप करने की जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट शुड बी मैक्सिमम वेलोसिटी। कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ आप ऊपर की तरफ जंप कर पाते हो, उन चीजों पर डिपेंड करेगा योर हैंग टाइम। थैंक यू।